Hello students, in our previous video I have discussed about the distance and displacement, motion its types, and in this video I will continue this chapter, and in this video I will discuss about speed, velocity, acceleration with some numericals. So let's start. When we talk about any moving body, we comes to its speed, like speed of car, speed of train, speed of bus, speed of athlete. What is speed? Speed is defined as the distance traveled by a body with respect to time in any direction. It means distance traveled upon time. The speed is distance traveled upon time. That is v equals to s upon t. Here v is speed, as is distance, that is time. SI unit of speed is meter per second, and it is also written as m s to the power minus 1. Since speed has magnitude only and no direction, जैसा कि डेफिनेशन में ही बता दिए कि इन एनी डायरेक्शन, किसी भी डायरेक्शन में, यानी स्पेसिफिक कोई डायरेक्शन नहीं है इसका, तो शायद इट हैज मैग्नीट्यूड ओनली, नो डायरेक्शन, सो इट इज अ scalar quantity. Speed of any body at any instant can be measured by speedometer. Speedometer measures speed of body in any instant, and distance traveled by car is measured by odometer. Odometer measures distance. Clear? Now average speed. It is defined as the total distance traveled by body divided by total time taken to cover the distance. That is average speed equals to total distance upon total time. अगर कोई बॉडी है A to C जाता है, A to B जाने में उसका, मान लेते हैं A से B 40 किलोमीटर है और B से C 60 किलोमीटर. A to B जाने में उसका टाइम लगा 6 आवर्स and B to C जाने में 4 hours. We have to calculate average speed. तो क्या करना है? A to B जाने में स्पीड क्या था? A to B का स्पीड क्या था? यानी V जो था V A to B, V A B, A to B का स्पीड क्या था? डिस्टेंस अपॉन टाइम. इसको हम V1 लिख लेंगे या VAB लिखेंगे. तो डिस्टेंस है 40 किलोमीटर अपॉन 6. मीटर पर ईयर, किलोमीटर पर आवर. एंड B to C, BC क्या हो जाएगा? 60 अपॉन 4 किलोमीटर पर आवर. Here 40 upon 6 equals to 6.66 kilometer per hour, but BBC equals to 15 kilometer per hour. A to B जाने में स्पीड क्या था? 6.66 किलोमीटर पर आवर, और B to C में जो स्पीड था 15 किलोमीटर पर आवर. लेकिन जब हम एवरेज स्पीड निकालेंगे A to C, एवरेज स्पीड निकालेंगे कहाँ से कहाँ? A to C. तो क्या हो जाएगा? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम. इट मीन्स टोटल डिस्टेंस 40 प्लस 60 अपॉन टोटल टाइम इज 6 प्लस 4, that is 10, and unit is kilometer per hour. 100 upon 10, it will be 100 upon 10, that is 10 kilometer per hour. Here A to B का जो स्पीड था 6.66, B to C का स्पीड बना 15 किलोमीटर पर आवर. बट जब हम एवरेज स्पीड कैलकुलेट किए तो एवरेज स्पीड क्या आ गया? 10 किलोमीटर पर आवर. क्लियर? ले लेते हैं ताकि टॉपिक जो है क्लियर हो जाए.
A scooterist covers a distance of 3 km in 5 minutes. Calculate his speed in meter per second and in kilometer per hour. Here distance covered is 3 km. Let's write distance. Distance covered, that is small s, is equal to 3 km. तो इसे कन्वर्ट कर लेंगे मीटर में, 3000 मीटर. एंड टाइम टेकन दैट इज स्मॉल t इज 5 मिनट. टाइम इज 5 मिनट्स. 5 मिनट्स. इसको सेकेंड में कर लेंगे तो ये हो जाएगा 5 × 60 दैट इज 300 seconds. Now speed is equals to distance upon time. Distance upon time, that is s upon t. S is ये 3000 meter upon 300 second. Here इस पूरे को अगर काट दिया जाए तो यहाँ 10 बचेगा, तो 10 मीटर पर सेकेंड. तो ये मीटर पर सेकेंड में आपका स्पीड निकल गया. अब जो है किलोमीटर पर आवर में कैलकुलेट करना है. हियर स्पीड इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड. अगर इसको फिर कन्वर्ट करना है किलोमीटर पर आवर में तो सिंपली इसको हम 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे. तो क्या हो जाएगा, ये 5 और इसको काट देंगे तो ये बन जाएगा मेरा 36. अब जो बनेगा ये किलोमीटर पर आवर आ जाएगा. मीटर पर सेकंड में आपका 10 मीटर पर सेकंड आएगा. उसको किलोमीटर पर आवर जब कन्वर्ट कर देंगे तो सिंपली 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 36 किलोमीटर पर आवर. नाउ अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 120 किलोमीटर इन 3 hours, whereas another train travels a distance of 180 kilometer in 4 hours. Which train travels faster? एक ट्रेन जो है 120 किलोमीटर 3 घंटे में, जबकि दूसरा ट्रेन जो है 180 किलोमीटर 4 घंटे में. किसका स्पीड ज़्यादा है? तो इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले 2 अलग अलग ट्रेनों के लिए स्पीड निकाल लेंगे. तो इसमें क्या करेंगे, ट्रेन ए के लिए, फॉर ट्रेन ए डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड इज 120 किलोमीटर एंड टाइम टेकन क्या हो जाएगा 3 hours. तो स्पीड क्या हो जाएगा इसके लिए, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज एस अपॉन टी. तो 120/3 दैट इज कितना आ जाएगा यहाँ 40 किलोमीटर पर आवर. और इस तरह लिखेंगे फॉर ट्रेन बी के लिए डिस्टेंस कवर्ड कितना हो जाएगा 180 किलोमीटर एंड टाइम टेकन इज 4 hours. नाउ स्पीड ए स्पीड बी का स्पीड क्या हो जाएगा एस अपॉन टी दैट इज एस इज इक्वल टू 180/4 इक्वल्स टू 4 and 4 5 यानी 45 किलोमीटर पर आवर. तो यहाँ पे क्लियर है, स्पीड ए का स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर, बी का स्पीड क्या हो गया 45 किलोमीटर पर आवर. तो हियर आंसर क्या हो जाएगा, स्पीड ऑफ ए इज लेस देन स्पीड ऑफ
बी। सेकेंड वाला ट्रेन जो है फास्टर ट्रेवल कर रहा है। क्लियर। ए कार ट्रेवल्स 30 किलोमीटर विथ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर एंड द नेक्स्ट 30 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म रेट ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर। फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ कार। तो इस वाले में जो है कार फर्स्ट 30 किलोमीटर को 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है, जबकि नेक्स्ट 30 किलोमीटर को दूसरे स्पीड, मैंने यहाँ पे दो अलग अलग स्पीड है, तो यहाँ फाइंड करना क्या है, एवरेज स्पीड क्या होगा। तो इसके लिए तो फर्स्ट 30 किलोमीटर ए से बी ले लिए, बी पॉइंट ले लिया, और सेकंड 30 किलोमीटर बी टू सी। ए टू बी जाने में जो स्पीड होगा, स्पीड दिया हुआ है वो 40 किलोमीटर पर आवर स्पीड से जाता है, जबकि दूसरे 30 किलोमीटर जो है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है। तो यहाँ पे दो अलग अलग टाइम भी कैलकुलेट होगा। हमारे पास एवरेज स्पीड निकालना है, तो एवरेज स्पीड का जो फॉर्मूला है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, बट हियर टाइम इज नॉट गिवन। यहाँ टाइम तो दिया है ही नहीं, डिस्टेंस तो हमारे पास है 30 + 30 टोटल 60, बट टाइम यहाँ नहीं है, इसलिए टाइम हम कैलकुलेट करना पड़ेगा और इंडिविजुअली। जैसे ए टू बी डिस्टेंस अपॉन टाइम, यहाँ पे T1 कैलकुलेट हो जाएगा। T1 क्या कैलकुलेट होगा, 30/40 दैट इज 3/4 आवर। ये T1 होगा ए टू बी के लिए। लेकिन बी टू सी जाने के लिए, बी टू सी के लिए जो टाइम होगा T2 दैट इज डिस्टेंस अपॉन स्पीड, दैट इज 30/20, तो हो जाएगा 3/2 आवर। फॉर्मूले पे हमारा है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस हमारा 30 + 30, टोटल टाइम क्या है T1 + T2, एक बार लिख लेते हैं T1 + T2। तो T1 + T2 कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो T1 + T2 यहाँ कैलकुलेट कर लेते हैं। T1 कितना, T1 + T2 इज 3/4 + 2 LCM लेने पर हो जाएगा 3 + 6 दैट इज 9/4। ये टोटल आवर कितने हो गए, T1 + T2 9/4 आवर। तो यहाँ 30 हो जाएगा 60/, T1 + T2 इज 9/4, और इसी को सॉल्व जब कर देंगे तो ऊपर 4 नीचे 9 दैट इज इक्वल्स टू जगह 240/9 दैट इज इक्वल्स टू, जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा 26.66 ही रख देते हैं, 26.6, और इसका यूनिट हो जाएगा किलोमीटर पर आवर। क्लियर। Here is a problem related to distance and displacement. A man travels a distance of 1.5 meter towards east, then 2 meter in south, and then 4 meter towards east. Find the total distance traveled and the total resultant displacement. एक पर्सन है जो A to B यानी ईस्ट जाता है, A to B ड्रॉ कर लिए, ईस्ट की ओर जाता है 1.5 मीटर, देन साउथ की ओर जाता है 2 मीटर, उसके बाद फिर 4.5 मीटर फिर से ईस्ट की ओर जाता है। तो इसको ड्रॉ कर लिया ऐसे। निकालना क्या है, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, तो टोटल डिस्टेंस कितना गया और साथ ही साथ डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ। तो टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड जो होगा सिंपली ऐड हो जाएगा A to B यानी 1.5 + 2
प्लस 4.5, that is 4.5, 6 to 5, 6 to 8 मीटर टोटल डिस्टेंस आएगा। बट यह रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? रिजल्टेंट तो होगा द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट। द इनिशियल और फाइनल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो होगा वो हमें इस तरह ड्रॉ कर लेना होगा, यानी शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए टू बी हमें निकालना पड़ेगा, ए डी। तो सेकंड में जो हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा, द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट दैट इज ए डी। ए डी फाइंड करना पड़ेगा। ए डी इक्वल्स टू व्हाट? तो ए डी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एक, हम क्या करेंगे, इस वाले लाइन को आगे की ओर एक्सटेंड करेंगे, साथ ही इस वाले को भी। ऐसे एक्सटेंड करने से सीडी को लेफ्ट की ओर एक्सटेंड किए और उसी सीडी पर एक परपेंडिकुलर ए से ड्रॉ कर लिए। इससे हमें मिल गया क्या, 1.5 ए बी और डी सी, यहाँ पे ई ले लेते हैं। हियर ए बी इक्वल्स टू सी ई, दैट इज 1.5 मीटर, एंड ए ई इक्वल्स टू बी सी, दैट इज 2 मीटर। तो यहाँ पर हमें एक राइट ट्रायंगल मिल गया जिसका परपेंडिकुलर 2 मीटर और बेस बन गया 1.5 प्लस 4 दैट इज 6 मीटर। इससे हम ए डी दैट इज हाइपोटेनस कैलकुलेट कर लेंगे। तो कैलकुलेट करते हैं। तो हियर एक बार लिख लेते हैं, परपेंडिकुलर जो होगा ए ई 2 मीटर, ई डी बेस ई डी जो होगा 1.5 प्लस 4.5 दैट इज 6 मीटर। अब जो है ए डी निकालेंगे। ए डी इक्वल्स टू बाय द पाइथागोरस थ्योरम अंडर रूट ए ई स्क्वायर प्लस ई डी स्क्वायर अंडर रूट ए इज 2 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर अंडर रूट 4 प्लस 36 दैट इज अंडर रूट 40 से हमारा इसको और तोड़ लेंगे, 4 5 2 दैट इज 4 से 2 बाहर आ जाएगा, अंडर रूट 10 2 रूट 10। अब जो है 2 इंटू रूट 10 का वैल्यू होता है 3.16। अब जो है इसको प्रोडक्ट जब कर देंगे तो ये हो जाएगा 6.3 या फिर 32 या 3 लिख सकते हैं हम सिंपली, 6.32 मीटर। ये हमारा जो है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आ गया। रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट ए डी that is equals to 6.32. Clear? Next physical quantity is velocity. It is the distance traveled by a body per unit time in given direction is called velocity. ये distance traveled ही है but in given direction. तो given जब डायरेक्शन हो गया तो फिर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट बन गया और वेलोसिटी बन गया डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट इज डिनोटेड बाय डेल्टा एस, सो इट बिकम्स v इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन टी।
और जैसा कि बताया गया है इन ए गिवन डायरेक्शन वेलोसिटी हैज अ डायरेक्शन सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी. Velocity has magnitude as well as direction, so it is a vector quantity, and therefore it can be, since displacement may be positive, negative or zero, therefore velocity also can be positive, negative or zero. या वेलोसिटी और स्पीड में डिफरेंस को देखेंगे कैसे. देखते हैं, एग्जांपल लेते हैं. मान लेते हैं कि एक पर्सन ए से एस किसी ट्रैक पे डिफरेंट ट्रैक से होते हुए जाता है और वो फाइनली ये तो गलत ट्रैक हो गया. ये जो है पहले ईस्ट की ओर जाया, फिर नॉर्थ, फिर ईस्ट, फिर नॉर्थ, और पूछा गया किसका स्पीड वेलोसिटी क्या होगा. तो अगर स्पीड पूछता तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टाइम होता, बट यहाँ जब वेलोसिटी पूछा है इन ए गिवन डायरेक्शन, यानी ये फाइनल कुछ डायरेक्शन होगा, यानी नॉर्थ साउथ ईस्ट, इसका डायरेक्शन जो हो जाएगा साउथ ईस्ट में, इसका कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ यही होगा. और इसीलिए जो स्पीड जो होगा, स्पीड ये भी स्पीड ही है बट इन गिवन डायरेक्शन, इसका एक डायरेक्शन दे दिया गया कि साउथ ईस्ट की ओर इसका स्पीड क्या होगा. तो इसका स्पीड हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट, यानी ए बी अपॉन टेकन टाइम, यानी इस डायरेक्शन में जो भी डिस्टेंस कवर हुआ, तो इस डायरेक्शन में ये पूरा डिस्टेंस नहीं लेंगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेंगे. इस डायरेक्शन में कितना मूवमेंट हुआ तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा, और यही तो हमारा डिस्प्लेसमेंट है. तो यहाँ पे स्पीड जो वेलोसिटी जो होगा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होगा. इट कैन बी, तो यहाँ तो देख लिए. नाउ एवरेज वेलोसिटी क्या होगा. एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी का अरिथमेटिक मीन होगा, दैट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2. मान लेते हैं स्टार्टिंग वेलोसिटी जो है u, स्टार्टिंग वेलोसिटी को u मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकेंड, और t सेकेंड बाद, t मीन्स 3 सेकेंड बाद जो है वो 50 मीटर पर सेकेंड का स्पीड गेन कर लेता है. तो यहाँ पर अगर एवरेज वेलोसिटी क्या होगा पता करें तो सिंपली इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2, यानी 10 प्लस 50 अपॉन 2, दैट इज 60 अपॉन 2, दैट इज 30 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा एवरेज वेलोसिटी. क्लियर. नाउ मोशन कैन बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म. यूनिफॉर्म मोशन कब होगा? व्हेन अ बॉडी कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन. इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा. अगर हम जैसे टाइम लेते हैं, यानी 1 मिनट में कोई बॉडी ट्रेवल किया 10 मीटर, दूसरे मिनट में देखिए, सेकेंड मिनट में 10, फिर 10 ऐड होगा यानी 20 मीटर. 3 सेकेंड में जब तीसरा सेकेंड आया तो फिर 10 मीटर बढ़ा, यानी 30 मीटर हुआ. चौथे सेकेंड में वो फिर 10 मीटर बढ़ के, यानी हर इंटरवल, यानी अगर देखा जाए 1 to 2 जाने में फिर से 10 मीटर, 2 to 3 सेकेंड में, 2 to 3 मिनट में कितना कवर किया, फिर 10. तो ये जो टाइम इंटरवल जो था फर्स्ट, अगर इसका ग्राफ बनाएंगे, टाइम को एक्स एक्सिस में लेंगे और डिस्टेंस को वाई एक्सिस में, और जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे, फर्स्ट सेकेंड में डिस्टेंस कवर्ड इज 10, सेकेंड मिनट में जो डिस्टेंस कवर किया 20, यानी कि यहाँ थर्ड वाले में 30, यहाँ 4 वाले में कुछ यहाँ,
और इसको जब प्लॉट करेंगे स्ट्रेट लाइन आएगा। यहाँ एक चीज़ देख रहे हैं कि हर इंटरवल ऑफ टाइम में यानी हर 1 मिनट में वो 10 मीटर डिस्टेंस ही कवर कर रहा है, उससे ज़्यादा नहीं और कम भी नहीं। यानी इसका स्पीड जो, अगर यहाँ स्पीड भी देखेंगे तो स्पीड एक कांस्टेंट हो जाएगा, स्पीड जो है यहाँ फिक्स हो जाएगा। अगर यहाँ पे हम इस मोशन का स्पीड निकालने जाएंगे बॉडी का, तो इस केस में क्या होगा, 10/1 डिस्टेंस अपॉन टाइम, 10/1 और दैट इज इक्वल्स टू हो जाएगा 20/2 करेंगे सेकंड में, तो 20/2 वही आएगा जो 30/3 होगा और वही होगा जो 40/4। यानी टोटल जो है कट कैंसिल हो गए सब। देखिए स्पीड जो है 10 मीटर पर सेकेंड ही आएगा, यानी हर इंटरवल टाइम पे। और स्पीड फिक्स है, इसी को बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन। अब नेक्स्ट जो होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन, उसको जब देखेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन, व्हेन अ बॉडी कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम द बॉडी इज सेड टू बी इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन। जब बॉडी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में डिफरेंट डिस्टेंस कवर करेगा, 1 सेकेंड में 5, दूसरा सेकेंड रीड करते हुए 15 मीटर कवर हुआ, 3 सेकेंड रीड करते करते डिस्टेंस ट्रेवल कितना टोटल हो गया 30। तो जब इंटरवल में चेक करेंगे कि फर्स्ट सेकेंड में डिस्टेंस कवर हुआ 5 मीटर, सेकेंड वाले में यानी सेकेंड वाले फर्स्ट टू सेकेंड वाले सेकेंड में जो है डिस्टेंस कवर कितना हो गया 10 मीटर, और थर्ड वाला इंटरवल थर्ड सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर लिया 15 to 30 मीन्स कितना जंप किया 15 मीटर ट्रेवल कर लिया। यानी पहले वाले में 5 मीटर, दूसरे वाले सेकेंड में 10 मीटर, थर्ड वाले में 15 मीटर। यानी इसका जो डिस्टेंस कवर हो रहा हर एक सेकेंड में वो इक्वल नहीं हो रहा, हो सकता है ये ज़्यादा भी हो रहा तो आगे चल के हो सकता है कम भी हो जाए। यानी बॉडी हो सकता है एक्सेलरेट भी हो या फिर डिसलेट हो। एक्सेलरेशन डिसलेशन आगे पढ़ेंगे। तो ये जो मोशन है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, इसका जो ग्राफ प्लॉट करेंगे तो ये कर्व लाइन शो करेगा लाइक दिस। क्लियर? द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सेलरेशन. It is the rate of change of velocity. It is the change in velocity with respect to time. जैसे मान लेते हैं कोई स्कूटर है, वो बिजी रोड में जा रहा है तो उसका स्पीड जो है 40 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन जैसे उसका रोड जो है क्लियर होता है वो अपनी स्पीड में राइज लाता है, यानी एक्सेलरेटर दबाता है और फिर कुछ ही सेकंड्स में उसका स्पीड जो है 60 किलोमीटर पर आवर में पहुंच जाता है। तो ये जो चेंज इन स्पीड था स्टार्टिंग में 40 किलोमीटर पर आवर था और कुछ ही सेकंड में बाद उसके जो स्पीड है वो 60 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो ये चेंज था विद रिस्पेक्ट टू टाइम। कितने टाइम में? तो मान लेते हैं 10 सेकंड में उसका स्पीड ये चेंज आया। तो वो जो द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम बन जाएगा आपका एक्सेलरेशन। तो अगर हम इनिशियल वेलोसिटी स्टार्टिंग वेलोसिटी का अगर यू मानते हैं, फाइनल वेलोसिटी को भी मानते हैं तो और टाइम को टी, तो जो रिलेशन बनेगा एक्सेलरेशन इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी दैट इज v माइनस यू, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी दैट इज यू अपॉन टी. द नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज एक्सेलरेशन. इट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम. द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, चेंज ऑफ वेलोसिटी, यहाँ पे वेलोसिटी चेंज करेगा, यानी पहले कुछ होगा और कुछ सेकंड बाद उसका वेलोसिटी कुछ और होगा, यानी डिफरेंट. तो जो चेंज इन वेलोसिटी होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम दैट इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन. दैट इज इफ वी डिनोट एक्सेलरेशन बाय a and initial velocity is u, final velocity is v and t is time, then acceleration a equals to v minus u upon t. ये हो जाएगा हमारा एक्सेलरेशन का रिलेशन. और अगर मान लेते हैं लेटेस्ट टेक द इनिशियल स्पीड, मान लेते कोई स्कूटर है जो रोड में जा रहा है, तो रोड बिजी होने के कारण उसका स्पीड जो है मान लेते हैं
36 मीटर पर सेकेंड पहले था, यानी इनिशियल वेलोसिटी मान लेते हैं 36 मीटर पर सेकेंड, और कुछ सेकेंड बाद मान लेते हैं टाइम टेकन जो है t इक्वल्स टू मान लेते हैं 10 सेकेंड बाद जो है उसका स्पीड मान लेते हैं रोड क्लियर हो गया, तो अपना स्कूटर एक्सेलरेट किया, जिससे उसका स्पीड फाइनल स्पीड पकड़ लिया 72 मीटर पर सेकेंड। यानी कि इनिशियल वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, फाइनल वेलोसिटी पहुंच गया 72 मीटर पर सेकेंड। कितने टाइम में? तो 10 सेकेंड में। तो जो एक्सेलरेशन कैलकुलेट करना होगा तो कैसे करेंगे? तो v माइनस यू अपॉन टी, दैट इज 72 माइनस 36 अपॉन 10, दैट इज 36 अपॉन 10 इज इक्वल्स टू 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या निकला हमारा? 3.6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Since acceleration depends on velocity and velocity is a vector quantity, so acceleration is also a vector quantity. Acceleration के पास मैग्नीट्यूड भी है, साथ साथ डायरेक्शन भी होगा, therefore it is a vector quantity. It may be positive, negative or zero. जैसा कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव, वेलोसिटी आपका पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है, तो एक्सेलरेशन भी उसी के साथ पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो हो सकता है। इट्स SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड कैन बी रिटन एज m⁻²। नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। इसको हम आगे देखते हैं। रिटार्डेशन और डिसेलरेशन, द नेगेटिव एक्सेलरेशन इज ऑल्सो नोन एज रिटार्डेशन। उसको हम आगे एग्जाम्पल के तौर पर समझेंगे। एग्जाम्पल लेके, पॉजिटिव एक्सेलरेशन कब होगा? व्हेन द इनिशियल वेलोसिटी इज लोअर देन द फाइनल वेलोसिटी। इफ इनिशियल वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड फाइनल वेलोसिटी इज 50 मीटर पर सेकेंड, then we can calculate the acceleration, that is v minus u upon t. v minus u upon t. Here v is equal to 50 meter per second, u is equal to 20 meter per second upon t is time, that is 5. Here acceleration unit जो होगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। Now 30 upon 5, 30 upon 5, that is 6 meter per second square. Here the acceleration is positive. अगर इसका ग्राफ बनाएंगे, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो इनिशियली इसका जो होगा स्पीड जो है, इनिशियल वेलोसिटी u, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड इज हियर। व्हेन t इज एट 0, वेलोसिटी इज 20 मीटर पर सेकेंड एंड एट फाइनल वेलोसिटी 50 मीटर पर सेकेंड। तो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर टाइम 5 सेकेंड, टाइम जब 5 सेकेंड, तो इसका वेलोसिटी क्या होगा? 50 लाइक दिस। तो ये जो 5 सेकेंड में राइज हुआ 20 से 50 तक, तो ग्राफ कैसे जाएगा इसका? लाइक दिस, इस टाइप का ग्राफ बनेगा। और नेगेटिव यानी ये अपवर्ड राइज करेगा पॉजिटिव एक्सेलरेशन में। नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा? when the initial velocity is higher than the final velocity, यानी इनिशियल वेलोसिटी ही ज़्यादा हो, यानी डिक्रीज करना, स्पीड में, वेलोसिटी में डिक्रीज करना, नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा। हियर इफ u इज 80 मीटर पर सेकेंड और फाइनल वेलोसिटी v इज 40, डिक्रीज हुआ ना वेलोसिटी में, तो अब जो निकालेंगे एक्सेलरेशन v माइनस u दैट इज 40 माइनस 80 अपॉन टाइम इज 5 सेकेंड, यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब जो आएगा -40 अपॉन 5 दैट इज -8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ जो एक्सेलरेशन आया नेगेटिव में, और नेगेटिव एक्सेलरेशन का मतलब ही है रिटार्डेशन। इसका अगर ग्राफ प्लॉट करेंगे तो फर्स्ट इनिशियल वेलोसिटी 80 था, व्हेन टाइम t0,
initial velocity is 80 meter per second and final velocity after 5 सेकेंड के बाद जो फाइनल वेलोसिटी हुआ मेरा 40 लाइक हियर। तो ये जो ग्राफ है टाइम के साथ क्या हुआ, डिक्रीज हुआ, डाउन हुआ है। तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन में क्या हो रहा था, ग्राफ ऊपर की ओर राइज कर रहा था, जबकि नेगेटिव एक्सेलरेशन में डाउनवर्ड डिक्रीज करेगा। तो और यही नेगेटिव एक्सेलरेशन जो होगा आपका रिटार्डेशन कहलाएगा। क्लियर। नाउ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कब होगा, व्हेन द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी अंडरगोज इक्वल चेंजेस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में जो वेलोसिटी होगा इक्वल बढ़ेगा, इक्वल चेंज होगा, तब जो एक्सेलरेशन होगा वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। यानी उस टाइम जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम खींचेंगे, ग्राफ नहीं पर एग्जांपल लेते हैं, मान लेते हैं कि टाइम 1 घंटे में जो है फर्स्ट आवर में वेलोसिटी 40 मीटर पर सेकेंड या 40 आवर ले रहे हैं तो किलोमीटर पर आवर इस वेलोसिटी था। सेकेंड आवर में उसका वेलोसिटी जो बढ़ा राइज किया वो सेम 40, फर्स्ट आवर में 40 किलोमीटर, सेकेंड आवर में 40 से 60 ले रहे हैं, 20 किलोमीटर का राइज करेगा। यानी इनिशियल फर्स्ट जो है 40 लेंगे तो जो सेकेंड आवर में उसका 60 किलोमीटर पर आवर, थर्ड आवर में जो हो जाएगा फिर 20 राइज करेगा, दैट इज 80 किलोमीटर पर आवर। या फोर्थ आवर में और 20 राइज करेगा, यानी 100 किलोमीटर पर आवर। तो ये जो स्पीड वेलोसिटी जो राइज कर रहा है हर एक घंटे में 20 किलोमीटर पर आवर का राइज कर रहा, बढ़ रहा है। तो ये जो वेलोसिटी यहाँ पे जो एक्सेलरेशन बनाएंगे यानी v माइनस यू बाई टी, तो सब में एक ही सेम आएगा वेलोसिटी, ये एक्सेलरेशन जो है सेम आएगा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में जो वीटी ग्राफ जब प्लॉट करेंगे वेलोसिटी टाइम ग्राफ, तो कुछ स्ट्रेट लाइन, कुछ इस तरह का स्ट्रेट लाइन मिलेगा और इसी से हम समझ जाएंगे कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन इज अ स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का एग्जांपल लेंगे तो वो फ्रीली फॉलिंग बॉडी का ले सकते हैं। फ्री फॉलिंग बॉडी में क्या होता है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को किसी सर्टेन हाइट से फ्री फॉल करते हैं यानी इसको छोड़ देते हैं तो स्ट्रेट सीधा ग्राउंड की ओर गिरता है। तो जब छोड़ते हैं तब उसका सीधा यू 0 रहता है, माने इनिशियल वेलोसिटी जो है 0 रहता है, लेकिन टाइम के साथ जैसे ग्राउंड की ओर गिरता है तो यहाँ पे जो उसका फाइनल वेलोसिटी 0 नहीं रहता है। ये जो वेलोसिटी धीरे धीरे जो राइज करता है वो एक एक्सेलरेशन, एक सर्टेन एक्सेलरेशन से राइज करता है, और यहाँ पे जो एक्सेलरेशन होता है वो हो जाता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन होता है। यही एक्सेलरेशन जो है यही हमारा ग्रेविटी यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होता है, जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है। और इसको सम के लिए यानी इजी कैलकुलेशन के लिए इसको 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर भी ले लिया जाता है। तो ये एक एग्जांपल था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का, फ्री फॉलिंग बॉडी। क्लियर। नाउ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, व्हेन वेलोसिटी अंडरगोज अनइक्वल चेंजेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, यानी इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अनइक्वल चेंजेस आएंगे एक्सेलरेशन में। कभी एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो कभी घटेगा, कभी ज़्यादा तो कभी कम। तो फॉर एग्जाम्पल ना मोटर बाइक मूविंग ऑन अ बिजी स्ट्रीट, जब स्ट्रीट बिजी हो तब जो मोटर बाइक राइड करता है तो कभी स्पीड उसको ब्रेक मारना पड़ता है, तो फिर कभी एक्सेलरेटर दबा के फिर स्पीड बढ़ा देता, अपना वेलोसिटी बढ़ाता है। फिर फॉर एग्जांपल बॉडी मूविंग विथ वेरिएबल वेलोसिटी, कोई भी बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से, कभी ज़्यादा से तो कभी कम वेलोसिटी से, तो ये जो मोशन होगा ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मोशन होगा। और फॉर एग्जांपल जैसे फर्स्ट
आवर में मान लेते हैं इसका स्पीड था, इस वेलोसिटी जो था उसका 40 किलोमीटर पर आवर था। सेकंड, दूसरे आवर जाते जाते उसका स्पीड जो हो गया मान लेते 45 किलोमीटर पर आवर। थर्ड आवर में 60 किलोमीटर पर आवर। 4 घंटा होते होते उसका वेलोसिटी जो है हो सकता है 65 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो ये जो इंक्रीज हो रहा है, या फिर अगर ब्रेक लगा देता है, यानी 5th आवर में बिजी रोड होने के कारण फिर से उसका 40 किलोमीटर पर आवर हो गया। तो ये जो वेलोसिटी है बॉडी का, कभी बढ़ रहा है, वो भी एक जैसा नहीं। पहले घंटे में 5 किलोमीटर पर आवर, दूसरे में 15 किलोमीटर बढ़ गया सीधा, उसके बाद 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा, फिर 5th आवर में कितना बढ़ा, इसमें तो डिक्रीज ही कर गया। तो ये जो मोशन था, एक्सेलरेशन था, लेकिन कभी पॉजिटिव, कभी ज़्यादा तो कभी कम। तो ऐसे में जो बॉडी का मूवमेंट है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कहलाएगा। तो इसका जब ग्राफ करेंगे, व्हेन वी प्लॉट अ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वी विल हैव अ कर्व्ड लाइन। स्ट्रेट लाइन इसमें नहीं मिलेगा। अगर एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होता तो स्ट्रेट लाइन मिला, लेकिन इसमें जो होगा एक कर्व लाइन मिलेगा। क्लियर? तो हियर इज अ न्यूमेरिकल। A scooter requires a velocity of 30 km per hour in 10 seconds just after the start. Calculate acceleration of the scooter. एक स्कूटर है जो कि स्टार्ट करने के तुरंत बाद 10 सेकेंड बाद ही 36 किलोमीटर पर आवर का वेलोसिटी पकड़ता है। तो एक्सेलरेशन कितना हुआ होगा, यानी जस्ट आफ्टर स्टार्ट हियर u इक्वल्स टू 0 किलोमीटर पर आवर। स्टार्ट से किया तो स्टार्ट में इनिशियल वेलोसिटी 0 होगा, लेकिन जस्ट 10 सेकेंड बाद जो इसका इस वेलोसिटी क्या हो गया 36 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द फाइनल वेलोसिटी 36 किलोमीटर पर आवर। टाइम हियर is 10 seconds. Therefore acceleration, we have to calculate the acceleration, that is a equals to v minus u upon t, that is v equals to 36 minus 0 upon 10, that is 36 upon 10 is equals to 3.6 किलोमीटर पर आवर। सॉरी, यहाँ तो एक गलत हो गया। यहाँ पर वेलोसिटी जो किलोमीटर पर आवर में है, जबकि टाइम इन सेकेंड। तो क्या करना है, स्पीड को भी, वेलोसिटी को भी किलोमीटर नहीं मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ किलोमीटर पर आवर को हमें क्या करना पड़ेगा, किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर सेकेंड में, और इसके लिए हमें 15/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। इससे क्या होगा, 2 × 36 इट इज 10 मीटर पर सेकेंड फाइनल स्पीड आ जाएगा। और 0 तो सिंपली ये 0 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। तो यहाँ पर जो एक्सेलरेशन होगा, दिस कैन बी कैलकुलेटेड रॉन्ग। v इक्वल्स टू 10 माइनस 0 अपॉन 10, दैट इज 10 अपॉन 10 इक्वल्स टू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इसका एक्सेलरेशन हो जाएगा। क्लियर? इस वीडियो में यहीं तक, और चैप्टर्स के बाकी टॉपिक्स जैसे कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, इक्वेशंस ऑफ द मोशन, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज ये तक, गुड डे।